Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my channel, Storyland Official, and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries, and suggestions. I am Urmi Muhammad, and today we are going to solve the exercise of chapter number 1, Nouns, from Grammar Tree for class 8. This is the second edition of this book. Let's start today's lecture with prayer. रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. The name of this chapter is Nouns. Let's remember. A है underline the nouns in the following sentences. नीचे हमें कुछ sentences given है और इसमें से हमने nouns को underline करना है. Number 1, Anita drew some funny cartoons in her painting class. Number 2 है basketball and cricket are Rehan's favorite games. 3, my friend keeps his 2 dogs in a kennel. Number 4, Salman lives in Job with his mother, father and sister. Number 5, the teacher asked the students to leave their notebooks in a pile on her table. 6, the cotton dresses are quite inexpensive. 7, the captain steered the ship towards the island. Number 8 है Sunera fed bananas to the elephant at the zoo. Number 9, old songs were played on the radio on Monday night. Number 10 है my mother got me a bouquet of red carnations on my birthday. सभी sentences में से nouns को separate कर लेते हैं. 1, Anita cartoons class. 2, basketball cricket Rehan games. 3, friend dogs kennel. 4, Salman job mother father sister. 5, teacher students notebooks pile table. 6, cotton dresses. 7, captain ship island. 8, Zunera bananas elephants zoo. 9, songs radio Monday night. And 10, mother bouquet red carnations. And the last noun is birthday. You know, nouns are words denoting things and people. For example, house, tree, child, water, teacher, etc. They may also denote abstract ideas. यानी names के साथ ही abstract ideas को भी denote करते हैं या फिर feelings को भी. For example, truth, happiness, honesty, etc. As you already know, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, nouns are broadly classified into the following types. इसको हम broadly इन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. प्रॉपर नाउंस, कॉमन नाउंस, कलेक्टिव नाउंस, कंपाउंड नाउंस, मटेरियल नाउंस, काउंटेबल नाउंस एंड अनकाउंटेबल नाउंस. टू फाइंड आउट इफ़ अ वर्ड और फ्रेज इज़ अ नाउन और कैन फंक्शन एज अ नाउन, ये जानने के लिए कि कोई भी वर्ड या फ्रेज नाउन है या नाउन की तरह फंक्शन कर सकता है, चेक इफ़ इट कैन सक्सेसफुली फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस बिलो. नीचे एक सेंटेंस गिवन है, इसको फिल करें जो भी आपके जहन में आइडिया है और आप देखें कि इसका कोई मीनिंग बनता है तो ये नाउन के तौर पे एक्ट कर सकता है या हम उसे हम नाउन कह सकते हैं. If it can, then it is a noun or can function as a noun. Dash is interesting. Use an article before the blank if needed. Blank से पहले अगर आपको a, an या the यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. नाउन की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं. Common nouns, persons or things of the same kind. Example है girl, dog and country. Collective nouns, a collection or group of people or things of the same kind. Example है class या फिर herd. Proper names of particular places or person. Example है Islamabad, Rija. Proper nouns always start with a capital letter. Material, names of materials or substances used for making things. Example है plastic, bronze. नाउन की बाकी टाइप्स को देख लेते हैं. काउंटेबल थिंग्स वी कैन काउंट यूजिंग नंबर्स. नंबर्स यूज़ करते हैं जिनको काउंट कर सकें वो काउंटेबल हैं. एग्जांपल है 3 men, a car, an idea. These may be singular or plural. We can use a or an with them. कंपाउंड है वर्ड्स मेड अप ऑफ 2 और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स. पहले से जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स मौजूद हों और उनको हम ज्वाइन करके एक नया नाउन बना लें, उसे हम कंपाउंड कहेंगे. एग्जांपल है ब्लैक बोर्ड, वॉशिंग मशीन, आर्म चेयर. नेक्स्ट है अनकाउंटेबल थिंग्स वी कैन नॉट काउंट यूजिंग नंबर्स. नंबर्स यूज़ करते हुए हम जिन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते. एग्जांपल है ऑक्सीजन, मनी, सैंड. दीज डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म. इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती. वी डू नॉट यूज़ ए और एन विद दैम. इनके साथ हम ए या एन भी यूज़ नहीं कर सकते. Common nouns can be further divided into concrete and abstract nouns. Common nouns की हम इसको further दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, concrete and abstract. Concrete nouns are nouns which refer to things we can see, touch and feel. ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं, वो concrete nouns में आती हैं. एग्जाम्पल है the girl took the dog for a walk. इसमें girl और dog
एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नाउन्स विच रेफर टू थिंग्स दैट वी कैन नॉट टच और सी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स हैं जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते। दीज कैन बी नेम्स ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट। किसी भी क्वालिटी, स्टेट या कॉन्सेप्ट का नाम, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल है, ही नेवर गेव अप हिज लव फॉर एनिमल्स इन स्पाइट ऑफ न्यूमरस हर्डल्स। अब यहाँ पे लव और हर्डल्स ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल हैं। नोट यहाँ पे गिवन है, वी ऑफन फॉर्म नाउन्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ करते हुए नाउन बनाते हैं। मोस्ट कॉमनली फ्रॉम अ वर्ब और एन एडजेक्टिव। ज़्यादातर वर्ब या एडजेक्टिव को यूज़ करके बनाते हैं। वी कैन देन यूज़ द नाउन फ्रेज इंस्टेड ऑफ द वर्ब। फिर हम नाउन फ्रेज की जगह वर्ब को यूज़ करते हैं या फिर एडजेक्टिव को, टू क्रिएट अ मोर फॉर्मल स्टाइल। वी कॉल दिस नॉमिनलाइजेशन। इस प्रोसेस को नॉमिनलाइजेशन कहते हैं। जैसे एक्साइट से एक्साइटमेंट या वाइड से विड्थ। बी हमें गिवन है, पिक आउट द नाउन्स इन द सेंटेंसेस बिलो एंड से व्हाट काइंड दे आर। नीचे जो सेंटेंसेस गिवन है इनमें से नाउन्स को आपने सेपरेट करना है, बताना है कि ये किस टाइप की हैं, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 1. The ship along with its crew has been saved. 2. The height of Mount Everest is 8,848 meters. 3. The National Museum has a good collection of artifacts. 4. The audience received the play with a thunderous applause. 5. Modern buildings are mostly made of concrete and steel. 6. Forgiveness is a noble virtue. 7. The accused declared his innocence to the jury. 8. She bought her furniture at the flea market. 9. I did not get a good sleep at night. And 10. Annie painted the wall green. नाउन्स को सेपरेट कर लेते हैं और उनकी टाइप्स को भी देख लेते हैं। 1. शिप, कॉन्क्रीट, क्रू, कलेक्टिव। 2. हाइट, एब्स्ट्रैक्ट, माउंट एवरेस्ट, प्रॉपर, मीटर्स, एब्स्ट्रैक्ट। 3. द नेशनल म्यूजियम, प्रॉपर नाउन, कलेक्शन, कलेक्टिव, आर्टिफैक्ट, कॉन्क्रीट। 4. ऑडियंस, कलेक्टिव, प्ले, कॉन्क्रीट, अपलॉज, कॉन्क्रीट। 5. बिल्डिंग्स, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट, मटीरियल, स्टील, मटीरियल। 6. फॉरगिवनेस, abstract, virtue, abstract. 7. Accused, concrete, innocence, abstract, jury, collective. 8. Furniture, collective, flea market, concrete. 9 है sleep, abstract, night, abstract, and 10 में any, proper noun है, wall, concrete. Next हमें given है C. Fill in the blanks with the nouns formed from the words given in the brackets. Brackets में जो words given हैं उनको use करते हुए हमने noun बनाने हैं। Number 1. There is a dash for an accountant at this firm. Vacant. 2. Only foods are softened by dash, flatter. 3. What dash do I have in this matter? Choose. 4. He ignored the dash I gave him advice. 5. His dash during the experiment provided valuable insight to the team. Observe. 6. Dash increase in temperature is an dash indicate of climate change in the world. 7. His dash refuse of the invitation added to my dash disappointment. 8. It is generally the dash careless of the drivers that leads to road accidents. 9. The government has made several policies to uplift farmers from dash poor. And number 10, the lawyer took dash permit for a few days of dash absent from the court. ब्रैकेट में गिवन वर्ड्स को चेंज करके जब इसको हम नाउन में बनाएंगे तो इस तरह से होंगे। नंबर 1 पे है वैकेंसी, 2 फ्लैटरी, 3 चॉइस, 4 एडवाइस, 5 ऑब्जर्वेशंस, 6 इंक्रीज एंड इंडिकेशन, 7 रिफ्यूजल एंड डिसअपॉइंटमेंट, 8 केयरलेसनेस, 9 पॉवर्टी एंड 10 परमिशन एंड एब्सेंस. नेक्स्ट इज डी. Sort the underlined nouns in the following conversation and list them in the appropriate column below. इसको पैराग्राफ में से हमने जितने भी नाउन्स हैं उनको सेपरेट करना है और इनके जो ग्रुप्स हमें गिवन हैं टेबल की फॉर्म में उनमें फिल कर देना है. Hello Rija, let's go to the restaurant and have some coffee. That's a good suggestion. Shall we go to Bistro? It's a nice place. I went there on my birthday with my family. When was your birthday and what did you on that day? It was on 23rd June. I had a party with my friends and family and had a lot of fun. I got many presents too. Aunt Jennifer gave me a ring made of gold and diamonds and my sister gave me a big bouquet of red roses. इसमें से हम नाउन्स को सेपरेट करते हैं और उनको क्लासीफाई कर लेते हैं ग्रुप्स में. प्रॉपर नाउन्स में है रिजा, बिस्ट्रो एंड जून.
कॉन्क्रीट नाउन है रेस्टोरेंट, प्लेस, रोजेस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं सजेशन, बर्थडे, फन एंड डे। कलेक्टिव नाउन्स हैं फैमिली, पार्टी, फ्रेंड्स, प्रेजेंट्स, बुके। मटीरियल नाउन्स हैं कॉफ़ी, गोल्ड, डायमंड्स एंड रिंग। The next topic is nominalization. Nouns can be made from other parts of speech in two ways. दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ करते हुए हम दो तरह से नाउन्स बना सकते हैं. मेकिंग नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स, हम वर्ब्स को यूज़ करके नाउन बना सकते हैं. सफिक्सेस सच एज ure, tion, ing, sion, ment, ance can be added to verb to change them into nouns. वर्ब में हम ये सफिक्स ऐड करके हम उसको नाउन बना सकते हैं. एग्जाम्पल गिवन है फेल, फेलियर, कंबाइंड कॉम्बिनेशन, राइट, राइटिंग, एडमिट, एडमिशन, एन्जॉय, एन्जॉयमेंट, अटेंड, अटेंडेंस. मेक नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स, दूसरा तरीका है हम एडजेक्टिव को यूज़ करके नाउन बनाएं. सफिक्सेस सच एज NESS, ANCEY, ITY, ENCE, TH can be added to adjectives to change them into nouns. एडजेक्टिव से जब हमने नाउन बनाना है तो इन सफिक्सेस को यूज़ करके हम बना सकते हैं. एग्जाम्पल गिवन है हैप्पी, हैप्पीनेस, इग्नोरेंट, इग्नोरेंस, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, एबल, एबिलिटी, साइलेंट, साइलेंस, वाइड, विड्थ, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ. यहाँ साइड पर हमें एक नोट गिवन है. इन सम केसेस, कुछ केसेस में द नाउन कैन बी यूज्ड एज बोथ अ नाउन एंड अ वर्ब विदाउट चेंज. हम किसी किस्म का भी स्पेलिंग चेंज किए बगैर उसको हम नाउन और वर्ब दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल गिवन है आई गो फॉर अ रन इन द मॉर्निंग, यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हुआ है रन का वर्ड. और दूसरा है आई रन एवरी मॉर्निंग. अब यहाँ पे जो रन का वर्ड है वो वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है. ई हमें गिवन है चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स बाय एडिंग अ सफिक्स. 10 वर्ड्स हमें गिवन है और सफिक्स ऐड करके हमने इसको नाउन में चेंज करना है. नंबर 1 डिफ़िकल्ट, 2 एंशियस, 3 रेफर, 4 रफ, 5 जज, 6 रिस्पॉन्सिबल, 7 सीरियस, 8 परफॉर्म, 9 मॉडेस्ट एंड 10 डिनाई. इनकी कन्वर्जन के बाद हम देख लेते हैं. 1 डिफ़िकल्टी, 2 एंजाइटी, 3 रेफरेंस, 4 रफनेस, 5 जजमेंट, 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी, 7 सीरियसनेस, 8 परफॉर्मेंस, 9 मॉडेस्टी एंड 10 डिनायल. नेक्स्ट टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. स्कैन द QR कोड. QR कोड तो मैं यहाँ नहीं नज़र आ रहा कहीं भी. इन बुक 7 में यू लर्न अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. अपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ा है. जनरली वी यूज़ ए और एन बिफोर अ काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन से पहले हम ए या एन को यूज़ करते हैं. बट इन सम केसेस, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं वी ऑल्सो यूज़ सम. कुछ केसेस ऐसे हैं कि उनमें हम सम भी यूज़ करते हैं. बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन वी जनरली यूज़ सम और लिटिल. अब अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है कि हम ज़्यादातर सम या लिटिल यूज़ करते हैं. हाउएवर, ताहम वी मे ऑल्सो यूज़ न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर्स बिफोर सम अनकाउंटेबल नाउन्स. कभी कभार हमें अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर यूज़ करना पड़ता है. एग्जाम्पल गिवन है अ टन ऑफ प्लास्टिक, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 4 सैक्स ऑफ राइस, 2 बकेट्स ऑफ वाटर. एफ हमें गिवन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज. इन जुमलों को पढ़ें. आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइन नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल. जितने भी नाउन्स हैं उनको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया है. आपने सिर्फ ये रिकग्नाइज करना है कि ये काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं. नंबर 1 है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन. 2 आई डोंट लाइक मिल्क. 3 आई प्रेफर टी. 4 scientists say that environment is threatened by pollution. 5 my mother uses butter to prepare cakes. 6 there are a lot of windows in our classroom. 7 we need some glue to fix this vase. 8 the waiters in the restaurant are very professional. Number 9 my father drinks 2 big glasses of water every morning. And 10 the bread my mother bakes is delicious. इन नाउन्स की टाइप्स को आइडेंटिफाई करते हैं. 1 काउंटेबल, 2 अनकाउंटेबल, 3 अनकाउंटेबल, 4 काउंटेबल, 5 अनकाउंटेबल, 6 काउंटेबल, 7 अनकाउंटेबल, 8 काउंटेबल, 9 काउंटेबल एंड 10 काउंटेबल. Our next topic is difference made by usage. Sometimes the way in which a noun is used can change its meaning and therefore its class from countable to uncountable. बाज़ औक़ात हम नाउन को जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है. सेंटेंस में यूज़ करने के बाद पता चलता है. एग्जाम्पल हमें गिवन है ए द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल लाइट ऑन अर्थ. लाइट अनकाउंटेबल. अब यहाँ पे जो लाइट का वर्ड है वो अनकाउंटेबल के तौर पे यूज़ हुआ है रेफरेंस टू द लाइट इन जनरल. हम जनरल तौर पे जब हम लाइट के बारे में बात करते हैं तो ये अनकाउंटेबल होती है. बी में आई हैव स्विच्ड ऑफ ऑल द लाइट्स. अब यहाँ पे लाइट्स काउंटेबल है. इन दिस सेंटेंस लाइट्स डज नॉट मीन लाइट इन जनरल. अब यहाँ पे आमतौर पे जो लाइट रोशनी की बात करते हैं वो बात नहीं हो रही, बट रिफर टू द बल्ब. यहाँ पे बल्ब की बात हो रही है. नोटिस दैट लाइट्स हैज़ अ प्लूरल एंडिंग. यहाँ पे हमने लाइट्स को प्लूरल फॉर्म में लिखा है. अगर हम इन जनरल बात करें तो काउंटेबल नाउन्स के साथ हम एस या एस लगा के उसको प्लूरल नहीं बनाते. ए है लुक,
द बॉक्स इज़ ऑन फायर, यहाँ पे फायर अनकाउंटेबल है, रेफरिंग टू द फायर इन जनरल। बी में है बिफोर गोइंग बैक टू आवर टेंट्स पुट आउट ऑल द फायर्स। अब यहाँ पे फायर्स काउंटेबल नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है, रेफरिंग टू सेवरल बोन फायर्स मेड बाय कैंपर्स, जो कैंपर्स ने बोन फायर्स लगाई थी, चलाई थी, उनके लिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है और यहाँ पे ये एज अ काउंटेबल नाउन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन। नाउन की एक और टाइप्स है, एक और फॉर्म है जिसको हम पॉजेसिव नाउन कहते हैं। अ नाउन दैट एक्सप्रेसेस ओनरशिप और रिलेशनशिप इंडिकेट्स पोजेशन। ऐसा नाउन जिससे किसी चीज़ की मिल्कियत का होना ज़ाहिर हो, उसको हम पोजेसिव नाउन कहते हैं। द पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन कैन बी फॉर्म्ड इन 2 वेज, ये 2 तरह से हो सकती है। नंबर 1 है द नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी प्लस एस। फॉर्म इज़ यूजुअली used with the names of living things और personified objects। इसकी एग्जांपल है ए, दिस इज़ मरियम्स फार्म हाउस, ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, ये पर्सनस के लिए यूज़ करते हैं, इसमें अपॉस्ट्रोफी यूज़ करके हम एस ऐड कर देते हैं साथ। दूसरा सेंटेंस है इसकी एग्जांपल में बी, नेचर्स लॉ शुड बी रिस्पेक्टेड। इसकी दूसरी टाइप इसको बनाने के लिए जो यूज़ होती है दैट इज़ नंबर 2 द ऑफ प्लस नाउन, यानी ऑफ का वर्ड यूज़ किया जाता है और उसके साथ हम नाउन यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, और ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जांपल गिवन है ए, द रूफ ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ लीकिंग। अब यहाँ पे ऑफ और उसके साथ दिस बिल्डिंग नाउन है। बी है द वॉल्स ऑफ दिस रूम आर क्वाइट बेयर। यहाँ पे बिल्डिंग और रूम दोनों ही नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए हमने ऑफ वाला तरीका यूज़ किया है। यूजेस ऑफ प्लस नाउन, ए है ऑफ प्लस नाउन इज़ यूज्ड विद इनएनिमेट पोजेशंस possessors or things। एग्जाम्पल है द वॉल ऑफ दिस हाउस हैव डेवलप्ड क्रैक्स इन सेवरल प्लेसेस। बी है ऑफ प्लस नाउन इज़ ऑल्सो यूज्ड व्हेन द नाउन इज़ फॉलोड बाय अ फ्रेज और अ क्लॉज। जब नाउन के बाद एक फ्रेज या क्लॉज आ रहा हो तब भी हम ये ऑफ वाला मेथड यूज़ करते हैं, ऑफ प्लस नाउन वाला। एग्जाम्पल है द पेशेंट्स वेटेड इन द क्यू ओबेइंग द डायरेक्शंस ऑफ द क्लर्क एट द reception desk. The result of the test which had been postponed will be declared today। यहाँ पर हमें एक टेबल गिवन है जिसमें एपोस्ट्रोफी वाला जो मेथड है उसको यूज़ करना सिखाया गया है कि कैसा नाउन हो तो हम उसकी कैसी एग्जांपल होगी। विद अ पर्सनस नेम, अगर पर्सन नेम के साथ हम यूज़ कर रहे हैं तो रिदास पिक्चर, जॉन्स कैट, रजाज बुक, इसको हम इस तरह से यूज़ करेंगे। विद सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस, ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर या प्लूरल है लेकिन उसका एंड में एस नहीं आ रहा। अ बॉयज़ हैट, अ चाइल्ड्स टॉय, अ टेलर्स शॉप। नेक्स्ट है प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस टेक्स ओनली एन एपोस्ट्रोफी प्लेस्ड आफ्टर द प्लूरल एस। अब प्लूरल नाउन ऐसे जिनके आखिर में एस या ई एस यूज़ हो रहा है उसमें हम आखिर में सिर्फ एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे और दोबारा एस ऐड नहीं करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल, बर्ड्स नेस्ट। अब बर्ड्स में जो बर्ड्स का एस है उसके बाद एपोस्ट्रोफी यूज़ हुआ है, दोबारा से हमने एस ऐड नहीं किया। विद नेम्स ऑफ अ कंट्री सिटी स्टेट, कंट्री सिटी या स्टेट के नेम के साथ यूज़ करेंगे तो पाकिस्तान फ्रीडम, कराची ट्रैफिक, मुल्तान स्ट्रीट। विद एनिमल्स बर्ड्स और इन एनिमेट थिंग्स, यानी एनिमल बर्ड्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कैट्स आई, कुकूज सॉन्ग एंड अर्थ्स क्रस्ट। विद सिंगुलर नाउन्स डिनोटिंग टाइम स्पेस, टाइम या स्पेस से रिलेटेड जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं उनके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे। अ वीक स्लीव, टुडेज न्यूज़पेपर। विद इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, इडियम्स को जब यूज़ करते हुए हमें ये मैथड यूज़ करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे। अ स्टोन्स थ्रो एट एन आर्म्स लेंथ। विद कंपाउंड नाउन्स द लास्ट वर्ड टेक्स द एपोस्ट्रोफी एंड एस। कंपाउंड नाउन जब हम यूज़ करेंगे और इसमें हम ये मेथड यूज़ करेंगे तो अ फादर इन लॉज, यहाँ पे फादर्स के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं यूज़ होगा, जो आखिरी वर्ड है लॉ उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी और एस ऐड कर देंगे। पॉप सिंगर्स, पोस्टमैन्स। नेक्स्ट है जी, री राइट द इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग द पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन विद एपोस्ट्रोफी एंड एस इन योर नोटबुक। इसमें हमने एपोस्ट्रोफी और एस ऐड करने वाला मेथड यूज़ करना है और इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस की जगह हमने पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन यूज़ करनी है। सेंटेंसेस देख लेते हैं। द डॉटर ऑफ माई सिस्टर इन लॉ इज़ ग्रेजुएटिंग टुडे टू द न्यू फिल्म ऑफ द एक्टर सैंक विदाउट अ ट्रेस। 3. What is the special offer for this month? 4. This photo was taken in the garden of my neighbor. And 5. I'm looking at the program list of the day. Next sentence is number 6. It was impossible to have silence even for a moment. 7. She has been given her salary only for 2 weeks. 8. This is a necklace that belonged to my grandmother. Number 9 है this book is about the last year of the president in office. And number 10, the film shows the revolt of the people against the monarch. इन सभी फ्रेजेस को पोजेसिव नाउन में चेंज करने के बाद हम देख सकते हैं नंबर 1 माई सिस्टर इन लॉज डॉटर,
जो यहाँ पे इटैलिसाइज्ड फ्रेज था उस सब की जगह हम ये यूज़ करेंगे। नंबर 2 है द एक्टर्स न्यू फिल्म। 3 दिस मंथ स्पेशल ऑफर फॉर माई नेबर्स गार्डन। 5 टुडेज प्रोग्राम लिस्ट। 6 even a moment's silence. 7 only 2 weeks salary. 8 my grandmother's necklace. 9 the president's last year in office. And 10 the people's revolt against the monarch. Next is H. Fill in the blanks with the appropriate form of possessive nouns. Use s or of plus noun. इन दोनों में से हमें खुद डिसाइड करना है, हमने apostrophe वाला तरीका यूज़ करना है या फिर of plus noun वाला। और इसमें जितने भी ब्लैंक्स हैं उनको हमने फिल करना है possessive noun से। 1 है we have to reach the dash principal office in 15 minutes. 2 the dash leaves trees turn red in autumn. 3 have you seen the mess in the dash children room. Number 4 है the dash teacher notes are available online. 5 है all the migratory dash birds flight routes are mapped scientifically. 6 है my picture will appear on the dash cover magazine next month. 7 है the climate of the country affects the dash structure houses constructed there. 8 है all my dash brother old bikes have been sold. Number 9 है I must confirm the dash price cupboard before placing the order. और last है number 10 a new wing is being added to the dash students hostel. ब्लैंक्स को फिल करने के बाद हम देख लेते हैं। नंबर 1 है we have to reach the principal's office in 15 minutes. 2 the leaves of the trees turn red in autumn. 3 have you seen the mess in the children's room. 4 the teacher's notes are available online. 5 all the migratory birds flight routes are mapped scientifically. 6 है my picture will appear on the cover of the magazine next month. 7 the climate of a country affects the structure of houses constructed there. 8 all my brother's old bikes have been sold. 9 I must confirm the price of the cupboard before placing the order. And last is 10 a new wing will be added to the students hostel. नेक्स्ट इज़ आई अ फ्यू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैव एरर्स। नीचे जो हमें जुमले दिए गए हैं उनमें से कुछ में मिस्टेक है, एरर है। ऑफ एपॉस्ट्रोफी यूज़, एपॉस्ट्रोफी को जिस तरह से यूज़ किया गया है उसमें एरर है। स्पॉट देम, आपने उसको पॉइंट आउट करना है। एंड री राइट देम करेक्टली, उनको दोबारा ठीक करके लिखना है। जिनमें मिस्टेक है आपने उनको ही सही करना है, सबको नहीं करना। नंबर 1 है दैट मैन कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, ही इज़ अ वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। 2 है माई आंट इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द रीडर्स क्लब। 3 I have requested my boss for 3 weeks leave next month. 4 है she is giving a party on the occasion of her brother's in law promotion. 5 I reached work late today because of the auto drivers strike. 6 my father studied in a boys hostel till class 10. 7 last night the Jatoi's house was burgled. 8 I was offered a high profile job in my father-in-law's firm. 9 I stayed in Charles' house for the holidays. और 10 है an Achilles heel is a person's weak point. आंसर है नंबर 1 दैट मैन कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, ही इज़ अ वुल्फ इन अ शीप्स क्लॉथिंग। 2 माई आंट इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द रीडर्स क्लब। 3 आई हैव रिक्वेस्टेड माई बॉस फॉर 3 weeks लीव नेक्स्ट मंथ। 4 शी इज़ गिविंग अ पार्टी ऑन द ओकेजन ऑफ हर ब्रदर इन लॉज प्रमोशन। 5 आई रीच्ड वर्क लेट टुडे बिकॉज ऑफ द ऑटो ड्राइवर्स स्ट्राइक। नंबर 6 है माई फादर स्टडीड इन अ बॉयज़ स्कूल टिल क्लास 10। 7 last night the Jatoi's house was burgled. 8 I was offered a high profile job in my father-in-law's firm. 9 I stayed in Charles' house for the holidays. And 10 is an Achilles heel is a person's weak point. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.